already on WhatsApp and through mail also. So please note, it is essential for everyone. It is mandatory for everyone to be present for that particular function, right? So that was for today's announcement. Now we will move on to our today's lecture of contract of sale of goods. I hope that my voice is clear to all. Yes, sir. Yes, sir. And you can see my screen also. Yes. Yes. Okay, very good. So we were discussing during our last lecture delivery of goods. Under that, we had discussed what is actual delivery of goods and what is symbolic delivery of goods. Now we will start with constructive delivery. So far, if you have any query, please ask your query so that we can clear your doubts, and then we will move forward with the today's session. So far, whatever we have covered in contract of sale of goods so far, if you have any query related to anything, what is contract of sale of goods, what type of goods are included in contract of sale of goods, if everything is clear, then we will move forward. If you have any query, we will solve that query, we will discuss on that query, and then we will move forward. Okay, so I don't think that there is any query. Very good. So we had discussed actual and symbolic delivery, and I think that it is clear to everyone. Now we will be starting with constructive delivery. Yes, any idea about constructive delivery? Anyone who has read about constructive delivery? Yes, sir. I have read about it. Yes. Is like if there is some delivery of goods and suppose I'm not at home and on my behalf is someone else is taking. Okay. So that is what I saw the definition of it. It's a constructive delivery. Okay. So you have ordered a product, you have paid for that product. So instead of you physically receiving that product or taking the delivery of that product, your family member on your behalf is taking the delivery of the product, right? Yes. Okay. Anything else? That's what I understand, that if I order something and I'm sorry, Let's go I ahead. missed in between. Sir, shall I go ahead? Yes, please go ahead. Okay, sir. My understanding is that if I order something and the other person at my home is taking possession of that or maybe acknowledge that good. I mean, I'm not at home and the other family members is taking delivery of that particular item. So it can be a constructive delivery. It can be a constructive delivery. Yes. Anyone else? Anyone else? So here the main focus is on what? It is on transfer of ownership or transfer of property. Now in this particular example, where the transfer of property has taken place, only the delivery is remaining. That means physical custody of goods is remaining, whereas the transfer of property has taken place. Suppose in this example, if we will say that a LED TV was brought, it was bought. The amount was given to the shopkeeper and he informed the buyer that by evening the delivery of this LED will take place. When the LED came to the place of buyer was not there to receive that. So instead of buyer,
his family member receives that, and that is called as constructive delivery. That is called as constructive delivery. Now here, the person who is handing over that particular product, or here in this case we will say LED TV, he cannot force that only the person, only the buyer is eligible to receive the product. If buyer is not there, I will take the product again to the shopkeeper, and the buyer then has to contact the shopkeeper, and again if the shopkeeper tells me, then only I will deliver the product again. But right now I am not allowed to give the delivery to anyone else except the buyer. Now this cannot be the excuse, as the property has already passed. Ownership is with now the buyer. Buyer has given the address to the seller. Now seller's duty is that he has to deliver at the place of buyer. It doesn't matter whether the buyer is at home or not. If his family members are there in the home, then they are eligible to take the delivery. This is one example of constructive delivery. And it will assume, क्या माना जाएगा कि डिलीवरी एक्चुअल हो गई है, डिलीवरी कंस्ट्रक्टिव हो गई, मतलब डिलीवरी पूरी हो गई, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स पूरा हो गया. नाउ इन सेकंड एग्जांपल, it is also called as when instead of two parties, that is seller and the buyer, one third party is also involved. One third party is also involved. Now for example, the buyer has selected a LED TV in the showroom of the seller, but that selected piece which is selected by the buyer is having a small scratch on it. So buyer, before paying for the money, brings it to the notice of the seller that this particular piece I am interested in, I want to buy this piece, but this piece is having a small scratch, so I want same model but the another piece, not this piece. The seller informs the buyer that okay, no problem, we have a godown, and in our godown this particular models new pieces are available. I will deliver one of that piece of the same model which you have chosen to your place. Now in this case, as we are saying that three persons are involved. Now buyer wants to buy a LED TV, seller wants to sell that LED TV, but seller's LED TV is having some scratch. Now here, if the godown is of some third party, गोडाउन किसका है? सेलर का नहीं है, थर्ड पार्टी का गोडाउन है. सेलर थर्ड पार्टी को फोन करता है और उसे बताता है कि ये बायर है, इसने पैसे इस LED टीवी के दे दिए हैं, ये उसका एड्रेस है, आपको इस मॉडल का एक LED टीवी उसके घर पे पहुंचाना है. So instead of buyer making the provision of transporting that particular product to seller making the provision of delivering the product to buyer's place, he is instructing someone else that this is the address of the buyer, name of the buyer, and this is the product, details of the product which you have to deliver to the buyer's place. Now it is now the responsibility of the third party to
send the product to buyer's place, and this is also called as constructive delivery. So in constructive delivery, we can say instead of buyer, family member can also accept the delivery, as well as when in any contract of sale of goods, if three parties are involved, some other party is also involved, and that other party is given the responsibility by the seller to deliver the goods to the place of buyer, that is called as constructive delivery. Now we will move on to the rules regarding delivery of goods. First rule is mode of delivery. We are talking about rules regarding delivery of goods. First one, mode of delivery. Is my voice clear to all? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay. Yes, no one was asking any query, na? So I thought that whether I am audible or not. Okay, very good. So mode of delivery, we are talking about, remember one thing, it is very simple. If you know the meaning of these words, rest is very, very, very simple. This is the simplest act which we are discussing in legal aspects of business. बहुत simple है और बहुत easy to understand. First one, rules regarding delivery of goods. First one is mode of delivery. कैसा होना चाहिए mode of delivery? Who will explain? What should be the mode of delivery of goods? Delivery of goods will take place only when there is a contract of sale of goods between two parties. One is seller and the other one is buyer. जब तक contract of sale of goods नहीं होगा, तब तक there is no question of delivering the goods. Delivery of goods will come into existence only when there is a contract between two parties, and these parties are seller and buyer. First one, mode of delivery. Who will explain this? Mode of delivery. What should be the mode of delivery? क्या होना चाहिए mode of delivery? Whatever you think. Sir, I think it should be given by a person to a person. Means physically there should be Okay, for someone present. example, you give me an example. Like if we order something online, so the delivery, the Okay. person who delivers it, who hands over the goods to the other person, that time he should not just Okay. it at the door. He should physically give it, and there should be a sign or approval that the person has received it. Okay. So in all the cases of contract of sale of good, this should be the mode of delivery, right? That the buyer, the seller should make a provision that physically the goods are given, are handed over to the buyer, and signature of buyer is taken that he has received physically the goods. ऐसा ही होता है हमेशा, ऐसा ही होना चाहिए हमेशा. Yes, that is what I think. अभी मेरे दिमाग में फिलहाल वही आ रहा है first point. Okay, very good. और कुछ, और कोई तरीका, और कोई तरीका क्या रहता है, क्या हो सकता है? Is anyone else? What could be the other mode of delivery of goods? Or we can say that yes, this is how the delivery, the mode of delivery should be in all the contract of sale of goods. ऐसा ही होना चाहिए, यही तरीका होना चाहिए कि सेलर ले लिए, जब बायर को बता दिया है
सामान आप डिलीवर कर दूंगा। डिलीवरी फिजिकली बायर को हैंड ओवर करना चाहिए, बायर के सिग्नेचर्स लिए कि आई यस द बायर शुड कंफर्म दैट आई हैव रिसीव्ड दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट और गुड्स, and then we can say the delivery is over. So that is the mode of delivery, right? सर आपका आवाज I'm not Yes, sure. your voice is breaking. I thought I have connectivity issue. Yes. Acha, now can you hear me नहीं clearly? No disturbance, Hello? little disturbance. Acha, just a moment, but I don't have network issue. Yes, can you hear me now? Yes, now it's Yes, better. sir. Okay, now it's clear, na? Yes. Yes, sir. Okay. So mode of delivery, the example which you have given is correct. It is absolutely correct. But it all depends upon the terms and conditions of contract of sale of goods. जो भी मोड ऑफ डिलीवरी बायर और सेलर के बीच में एग्री हुआ है, उसी हिसाब से वो होना चाहिए, उसी हिसाब से वो होना चाहिए. Now, if a fridge has been purchased by the buyer and the seller assures the buyer that I have a transportation service also, I will make sure that by evening this fridge which you have purchased will reach your place. So यहां पर मोड ऑफ डिलीवरी क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए मोड ऑफ डिलीवरी? यहां पर जो कंडीशन, जो टर्म्स एंड कंडीशन वहां पर एग्री हुए हैं दोनों के बीच में, किसके बीच में? बायर और सेलर के बीच में. सेलर ने क्या बोला यहां पर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में कि आप मुझे 15,000 रुपए दे दीजिए, 15,000 में ही डिलीवरी भी इंक्लूड है, मेरे पास टेम्पो है, अभी बाहर गया हुआ है, शाम तक मैं अपने टेम्पो से आपके घर पे आपका जो रेफ्रिजरेटर है, जो फ्रिज आपने पसंद किया है, वो डिलीवर कर दूं. तो यहाँ पर मोड ऑफ डिलीवरी क्या होगी? यहाँ पर मोड ऑफ डिलीवरी होगी टेम्पो विच इज ओन्ड बाय सेलर, which should reach by evening with refrigerator which has been purchased by the buyer to his place by that evening. So mode of delivery is very simple. It always depends upon the terms and conditions of the contract of sale of goods. Now the example which you have given, that if we are purchasing anything online, then the mode of delivery is that the person, the delivery person should come to the buyer's place. He should physically hand over the product to the buyer and he should take signature of the buyer, and that will be the end of mode of delivery for that particular product. अगर मैंने Amazon से कुछ खरीदा, तो अगर मैंने फोन खरीदा है, फोन की वो डिलीवरी जो पर्सन रहेगा वो फिजिकल डिलीवरी जब मुझे देगा, मेरे सिग्नेचर्स वहां पर ले लेगा कि यस आई हैव रिसीव्ड दिस फोन पार्सल ऑफ विच कंटेन्स फोन, तब वो मोड ऑफ डिलीवरी पूरी हो जाएगी, खत्म हो जाएगी. नाउ दिस इज द रूल ऑफ अमेजॉन. मोड ऑफ डिलीवरी उनका कैसा है? उनका ये कंडीशन है कि यू पे फॉर द प्रोडक्ट, वी विल मेक श्योर दैट यू विल रिसीव द प्रोडक्ट फ्रॉम आवर डिलीवरी पर्सन. he will physically hand over the product, he will take your received signature, and then he will inform the company also. Company is Amazon is now here seller, ki then the delivery person will inform the seller that he has handed over the product to the buyer. तो मोड ऑफ डिलीवरी, तो वहां पर अमेजॉन की क्या पॉलिसी है कि आप प्रोडक्ट सिलेक्ट कीजिए, आप प्रोडक्ट का कॉस्ट पे कीजिए,
we give you a guarantee that this is how your products delivery will take place. Mode of delivery क्या होगा कि वो कलकत्ता में पीस है या फिर वो मद्रास में पीस है या फिर वो दिल्ली में पीस है. हम लोग देखते हैं ना, अगर मैंने फोन भी ऑर्डर किया या आप लोग कुछ भी ऑर्डर करते रहेंगे तो कभी अगर हम लोग जैसी ट्रैक करते हैं तो the parcel has left Gurgaon facility or the parcel has left the Chennai facility or the parcel has been shipped from Mumbai. So this is their guarantee. Their term is what? Ki you pay for the product, we will ensure that the product is delivered at your doorstep. It is physically handed over to you and you have to receive that physical product, and then you have to give a receiver's signature on that particular paper or bill, and then the delivery person will immediately inform the seller, that is Amazon, that yes, the buyer has been handed over with the product. And that is the mode of delivery for Amazon. So mode of delivery is very simple. It is dependent upon the terms and conditions of the contract of sale of goods. Is my voice audible clearly to all? Yes, sir. It is Very good now. Yeah. Yes. Now the second one is delivery of goods and payment of price are concurrent conditions. Delivery of goods and payment of price are concurrent condition. Concurrent is continuous, immediate. What is that? Delivery of goods and payment of price are concurrent conditions. Sir, Neha here. Yes. I'm not sure whether I'm correct or not, but my understanding says that the seller shall be ready and willing to give the possession of the goods to the buyer in exchange of the price. Like मैंने recently fridge लिया था, so we had a deal in their outlet कि इतने का है, इतना पैसा देना है, and finally हम लोगों ने negotiate किया and then एक final price हुआ और we paid. Very good. And then उन्होंने बोला कि हम अपने टेम्पो से आपको डिलीवर करके देंगे. देन उनके जो डिलीवरी बॉय थे उन्होंने आके डिलीवर करके दिया. तो जो हमारा डील हुआ था वहां पे एंड जितना हमने किया है बस उतने में ही हमारा डील फिनिश होगा क्योंकि हमारा कंडीशंस पेमेंट का कंडीशन हमारा ऑलरेडी वहां पे हो गया था. तो वेरी गुड. इन केस डिलीवरी तो आपने पे घर पे किया या आपने वहीं पे किया? नहीं सर, वहीं पे किया. अच्छा. तो अगर मतलब मेरा अंडरस्टैंडिंग ऐसा है कि जो भी हमारा डील हुआ था पेमेंट ऑफ प्राइस का, तो जो कंडीशंस के साथ हुआ था वो मतलब सेलर और बायर के बीच में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से जो डिसाइड हुआ आफ्टर दैट वो डिलीवरी हुई. तो अगर इनकेस डिलीवरी बॉय आके हमें बोलता है कि मुझे एक्स्ट्रा डिलीवरी के पैसे और दे दीजिए, बट वी हैड कि हमारा वहां पे ही डील हो गया था कि वो जो आउटलेट के ये हैं वो हमें वैसे ही डिलीवरी देंगे क्योंकि इट इज फ्री एंड हम लोगों ने ऑलरेडी पेमेंट कर दिया है. तो आई विल नॉट पे एनी एक्स्ट्रा अमाउंट टू द डिलीवरी बॉय क्योंकि हमारा ऑलरेडी वो डील हो गया था और जो भी कंडीशंस के साथ हुआ था सेलर और बायर के बीच में वो डिलीवरी ऑफ गुड्स एंड पेमेंट ऑफ प्राइस कंडीशंस के अंदर है. सो इट इज एब्सोल्युटली क्लियर. तो जो आपका टर्म्स एंड कंडीशन था उस टर्म्स में क्या था कि डिलीवरी फ्री होगी, करेक्ट? यस सर. यस सर. अगर डिलीवरी बॉय आपको बोलता है कि नहीं नहीं मुझे वो एड्रेस ढूंढने में प्रॉब्लम हुआ, एड्रेस काफी अंदर था आपका, गली छोटी थी, घर आने में प्रॉब्लम हो गया, उतारने के मुझे अभी 200 रुपए एक्स्ट्रा देने हैं, तो आपको देने की जरूरत नहीं है क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में पहले ही हो चुका है. वेरी गुड. सो एग्जाम्पल इज क्लियर. वेरी गुड. अब दूसरा कंडीशन, सपोज अब अगर आप फ्रिज लेने गए, आपको फ्रिज बहुत अच्छा लगा, आपने पसंद कर लिया फ्रिज, और जब आप काउंटर पे पैसे देने के लिए जाते हैं तब आपको पता चलता है कि आपका पर्स तो घर पर ही रह गया, आपका पर्स तो घर पे ही रह गया. तो सेलर तब तक बिल बना रहा है, बिल बना नहीं है या बन चुका है, जो भी है, आप सेलर को बताते हैं अरे सॉरी मेरा पर्स घर पर रह गया है,
मैं एक काम करती हूँ कि मैं कल पैसे लेके आती हूँ और फिर मेरा कार्ड उसमें सब कुछ उसी में है, तो मैं कल कार्ड लेके आती हूँ और कल मैं पेमेंट करके ये फ्रिज ले जाऊंगी। सेलर अगर ये बोलता है इस कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में कि नो प्रॉब्लम मैडम, आप अभी ले जाइए और जो पर्सन डिलीवरी के लिए आएगा वो आपको बिल और फ्रिज हैंडओवर करेगा, आप उसे 15,000 रुपए वहां पर कैश दे दीजिएगा। कंडीशन होगा कि जब घर पर वो फ्रिज आएगा तब आपको 15,000 रुपए देने हैं। तो सिंपल यहां पर क्या कंडीशन रहता है, या जो टर्म्स एंड कंडीशन जो फाइनल हुए हैं उसी टर्म्स एंड कंडीशन को फॉलो करना है। पहले टर्म्स में क्या था कि आपने पैसे दे दिए, फ्रिज की डिलीवरी का जो भी चार्जेस रहेगा इट इज टू बी बोन्ड बाय द सेलर, तो सेलर ने आपको फ्री में डिलीवरी दी, आपका कॉन्ट्रैक्ट पूरा हो गया। दूसरा कंडीशन के एग्जांपल में क्या हुआ, आप गलती से अपना पर्स भूल गए, उसमें कार्ड था आपका, उसमें कैश था, आपने सेलर को इन्फॉर्म किया, सेलर को शायद आपके ऊपर विश्वास था, सेलर ने कहा कोई प्रॉब्लम नहीं मैडम, मैं आपको फ्रिज डिलीवर कर देता हूं। आपको क्या करना है, पैसा कब पे करना है, जब डिलीवरी आपके पास हो जाएगी। Depends upon what type of terms and conditions are entered in contract of sale of goods between the buyer and the seller. Next one, buyer to apply for delivery of goods. What does it mean? Buyer to apply for delivery of goods. कब करेगा बायर अप्लाई डिलीवरी ऑफ गुड्स के लिए? बहुत सिंपल, once the buyer pays the money of that goods of that particular product, then he will apply for delivery of goods. जनरली क्या होता है कि फ्री में, अब मैं पर्स भूल गया तो मुझे वो प्रोडक्ट मिल जाएगा, these things are bit rare in nature. नॉर्मली कोई विश्वास करता नहीं है, पर अगर किसी ने किया तो वो बात अलग है। नॉर्मली वो दुकानदार क्या बोलेगा, ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं सर, कल आप आ जाइए, मैं ये पीस आपके लिए रखूंगा, कल आप पे कर दीजिए और ये फ्रिज लेके चले जाइए। दिस इज द नॉर्मल प्रोसीजर। बायर टू अप्लाई फॉर डिलीवरी मीन्स व्हेन द बायर pays for that particular goods or pays for that particular product, then he can tell he is supposed to apply for the delivery. It is not physical application should be written to the seller that I have paid this much of amount for this product, now I request you to deliver this particular product to my place, and that is called as applying for goods by the buyer. Apply for goods, buyer applies for goods means doesn't mean that physical एक एप्लीकेशन बराबर से देनी चाहिए। जैसे अगर हमारा अगर असाइनमेंट लेट हो जाता है या अगर मुझे ऑफिस से छुट्टी चाहिए तो मुझे एक एप्लीकेशन देना पड़ेगा, या जो भी मेल करना पड़ेगा, या जो भी रूल रहेगा वो फॉलो करना पड़ेगा। यहाँ पर जस्ट एक अप्लाई फॉर डिलीवरी मतलब कि कब वो इलिजिबल होता है डिलीवरी सेलर से मांगने के लिए। कब इलिजिबल होगा? जब वो उस प्रोडक्ट के पैसे सेलर के अकाउंट में ट्रांसफर करेगा, सेलर को उस प्रोडक्ट के पैसे दे देगा, तब वो इलिजिबल हो जाता है डिलीवरी मांगने के लिए। सो दैट इज कॉल्ड एज बायर टू अप्लाई फॉर डिलीवरी। प्लेस ऑफ डिलीवरी ऑफ गुड्स, वेरी सिंपल। प्लेस ऑफ डिलीवरी ऑफ गुड्स कौन बताएगा? प्लेस ऑफ डिलीवरी ऑफ गुड्स कौन बताएगा? प्लेस ऑफ, हु विल finalize the place of delivery of goods? The buyer. Buyer. Yes, buyer. It is not the seller, it is the buyer. Buyer is purchasing the particular product, he wants the delivery at his place, so he is supposed to inform the seller that this is the address of my address, and you have to deliver this refrigerator or whatever thing which he has purchased
he has to be delivered at that particular address. So that is the meaning of place of delivery of goods. It is always to be decided, it is always to be informed by the buyer to the seller. सेलर ये नहीं बोलेगा कि आप 10 किलोमीटर, आपका एड्रेस 10 किलोमीटर है, तो मैं एक काम कर सकता हूं कि 5 किलोमीटर पे वो रेफ्रिजरेटर को डिलीवर कर दूंगा, उसके आगे आप लेके जाइए। अगर ऐसा टर्म्स एंड कंडीशन होता है तो बायर इज हैविंग एवरी राइट टू रिजेक्ट दैट कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स। ऐसा कोई भी कॉन्ट्रैक्ट करने की बायर को जरूरत नहीं है। बायर का क्या राइट है कि अगर आप मेरे घर पे डिलीवरी देंगे तो मैं ये प्रोडक्ट खरीदने के लिए तैयार हूं। बायर इज हैविंग अ राइट, ही इज अ कस्टमर। कस्टमर मीन्स that he is having a right whether to purchase a product or not. बायर को वो फ्रिज बहुत पसंद आया, उसने सेलर को बोला कि मैं ये खरीदना ही चाहता हूं। सेलर को ये पता चल गया कि अरे इसको तो बहुत अच्छा लगा अभी ये फ्रिज, अब ये तो खरीदेगा ही खरीदेगा। बायर क्या बोलता है, उसको एड्रेस बता देता है। एड्रेस में सेलर को क्लियर हो जाता है कि अरे ये तो 10 किलोमीटर है और मैं तो 2 किलोमीटर के ही रेडियस में नॉर्मली डिलीवरी देता हूं। और फिर सेलर बायर को बोलता है कि मैं 2 किलोमीटर के रेडियस में डिलीवरी कर सकता हूं, 2 किलोमीटर तक टेम्पो आएगा, उसके आगे जो भी टेम्पो का खर्चा है वो आपको करना पड़ेगा, या वहां पर वो उतार देगा फ्रिज, उसके आगे आप लेके जाइए, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कैसे लेके जाना है। अब बायर के पास क्या ऑप्शन है कि बायर कैन रिजेक्ट दिस डील, नहीं मुझे नहीं करना है, मैं दूसरी दुकान से देख लूंगा, या वो नेगोशिएट कर सकता है। So it all depends upon the place of delivery of goods is to be decided always by the buyer and not by the seller. Next, risk of delivery, that we have already discussed कि risk of delivery किसके पास रहता है। risk of delivery किसके पास रहता है। if the seller has promised the buyer that it is my responsibility, it is my responsibility to deliver the washing machine which you have purchased to your place carefully, without any scratch, without any damage. That means he has taken the risk of delivering the washing machine to buyer's place without any damage. क्यों उसने वो रिस्क लिया है? क्योंकि वो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल के टर्म्स के अंडर था कि बायर वॉशिंग मशीन पसंद करता है, सेलर उसे बोलता है कि आपको 400 रुपए डिलीवरी के एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे, दोनों में नेगोशिएशन होता है, फाइनली ये टर्म कंडीशंस बन जाते हैं। ये कॉन्ट्रैक्ट का फाइनल टर्म होता है कि ठीक है 400 रुपए बायर एक्स्ट्रा देगा और सेलर वॉशिंग मशीन एंश्योर करेगा कि विदाउट एनी स्क्रैच, विदाउट एनी डैमेज इट इज डिलीवर्ड टू दी बायर्स प्लेस। अब अगर बीच में एक्सीडेंट हो जाता है तो किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? To pay for the damages, it is the responsibility of the seller, because the seller has charged extra money as delivery charges. वो extra money charge कर रहा है, इसका क्या मतलब है कि he is taking the risk that अगर आपके घर पहुंचने तक या घर पहुंचने के बाद जब वो उतार रहा है डिलीवरी बॉय, जब वो डिलीवरी एजेंट वॉशिंग मशीन उतार रहा है तो उसके हाथ से वो स्लिप हो जाती है और वो नीचे गिर जाती है। जैसे ही वो नीचे गिर जाती है एक छोटा सा स्क्रैच उस पे आ जाता है, एक जगह से वो थोड़ा सा जो उसका कोटिंग रहता है वो खराब हो जाता है। तो यहां पर बायर इज हैविंग एवरी राइट दैट ही कैन रिजेक्ट द डिलीवरी ऑफ दिस प्रोडक्ट एंड ही कैन डिमांड a fresh product from the seller, because it was promised by the seller that
he will deliver the goods. But if the situation is different, while the negotiation was going on, सेलर बोलता है 400 रुपए आपको देने पड़ेंगे ट्रांसपोर्टेशन के, ये तो मशीन का पैसा आपने दे दिया है, अब 400 रुपए अगर आप और एक्स्ट्रा देंगे तो मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूं कि मेरे टेम्पो में आपको वॉशिंग मशीन डिलीवर कर दूंगा। बायर थोड़ा सा बाहर एक दो जगह जाता है, एक दो टेम्पो वालों से पूछता है, तो एक टेम्पो वाला उसे बोलता है कि सर मैं 200 रुपए में आपको आपके घर तक मशीन दे सकता हूँ, मेरे चार्जेस 200 रुपए होंगे। बायर सेलर को बोलता है कि मुझे आपसे डिलीवरी नहीं चाहिए, आप मुझे सिर्फ मशीन का बिल दीजिए और मेरी मशीन को आप ये बाहर जो टेम्पो मेरा खड़ा है इसमें लोड कर दीजिए। तो जैसे ही वो टेम्पो में वॉशिंग मशीन सेलर लोड कर देता है, सेलर का रिस्क खत्म हो जाता है। अब बायर का रिस्क शुरू हो जाता है। अगर घर ले जाते समय कुछ स्क्रैच हुआ, कुछ डैमेज हुआ, तो किसके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी गई? वो गई रिस्पॉन्सिबिलिटी बायर के पास। रिस्क किसके पास गया? रिस्क गया बायर के पास। सो रिस्क इज डिपेंडेंट अपॉन द टर्म्स एंड कंडीशंस। नेक्स्ट, cost of delivery of goods. Again, it is to be decided by the buyer and the seller. Cost of delivery of goods कि कौन करेगा। अभी जैसे आपने एक एग्जांपल दिया जिसमें बताया कि आपने नेगोशिएट किया, नेगोशिएशन में सेलर ने फाइनल किया कि यस मैं आपको डिलीवरी दूंगा, मेरी तरफ से डिलीवरी रहेगी, डिलीवरी का कोई चार्ज नहीं लूंगा, तो कॉस्ट ऑफ डिलीवरी इज हियर नील, जीरो। It is to be borne by the seller because the condition in the contract says that, the terms in the contract says that, right? So that is called as cost of delivery of goods. But अगर वो नेगोशिएट आप कर रहे हैं और वो आपको बोल रहा है कि नहीं मैडम, मैंने तो आपको जो फ्रिज दिया है वो कंपनी कॉस्ट पर दिया है, आप किसी भी शोरूम में चले जाइए, इससे कम आपको वो मिल ही नहीं सकता, तो मुझे इसमें तो कुछ भी प्रॉफिट नहीं है, तो डिलीवरी के तो आपको 400 रुपए एक्स्ट्रा देने ही पड़ेंगे, नहीं तो आप प्लीज दूसरी दुकान से फ्रिज देख लीजिए। आपको भी ऐसा लगता है कि अगर अरे ये इतना कॉन्फिडेंटली बोल रहा है, और या शायद आप एक दो जगह जाके आ गए हैं, आपने देख लिया है कि वाकई ये इस फ्रिज की 1000-2000 रुपए दूसरी दुकानों में ज्यादा बताया जा रहा है, दूसरी एजेंसीज में ज्यादा बताया जा रहा है। फिर अगर नेगोशिएशन में फाइनल होता है कि ठीक है चलो 300 रुपए में आप फाइनल करो, मैं आपको और एक्स्ट्रा 300 रुपए डिलीवरी के दे देती हूँ, तो यहाँ पे कॉस्ट ऑफ डिलीवरी कौन उठा रहा है? कॉस्ट ऑफ डिलीवरी उठा रहा है बायर। ठीक है, इट ऑल डिपेंड्स अपॉन कंडीशंस, टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स। नाउ नेक्स्ट वन, delivery of goods contracted for mixed with other goods. What is this? Delivery of goods contracted for mixed with other goods. अब इसका सिंपल एग्जांपल सबको पता है। अब सपोज अभी जैसे अमेजोन से हम लोग काफी सारी चीजें ऑर्डर करते हैं, आप लोग भी ऑर्डर करते हैं, फ्लिपकार्ट से ऑर्डर करते हैं, बहुत सारे ऑनलाइन ऐसे ई कॉमर्स पोर्टल्स हैं जहां से हम लोग काफी सारी चीजें ऑनलाइन डिलीवर करते हैं, ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं। अब अगर आप फ्रिज खरीद रहे हैं, वॉशिंग मशीन खरीद रहे हैं, तो नॉर्मली इन मोस्ट ऑफ द केसेस व्हाट हैपेंस इज कि एक टेम्पो में एक सिंगल रेफ्रिजरेटर रहता है जो डिलीवरी के लिए दुकान से निकलता है और डिलीवर किया जाता है। वॉशिंग मशीन आपने सेलर से ली, एक सिंगल वॉशिंग मशीन आपने ली है, सेलर क्या करेगा? उसके टेम्पो में वो सिंगल वॉशिंग मशीन पैक करेगा अच्छे से और आपके घर पे वो सिंगल वॉशिंग मशीन डिलीवरी हो जाती है। अब मिक्स्ड गुड्स की डिलीवरी की रिस्पॉन्सिबिलिटी या कैसा होता है? मिक्स्ड गुड्स हमारे को सबको पता है। अब अगर सेलर अमेजोन है और अमेजोन से मैंने एक पेन ड्राइव मंगाया, पेन ड्राइव छोटा सा पेन ड्राइव है, 32 GB का एक मैंने पेन ड्राइव ऑर्डर किया, 400 रुपीज का वो पेन ड्राइव है। तो ऐसा होता है क्या? डिलीवरी बॉय वो पेन ड्राइव सिर्फ अपने जेब में लेके आता है और मुझे वो हैंड ओवर करके चला जाता है, ऐसा रहता है क्या?
हम लोग क्या देखते हैं कि उसके पीछे काफी बड़ा बैग रहता है, अगर वो मोटरसाइकिल पे है, अगर वो टेम्पो में है तो टेम्पो में और भी बहुत सारे पार्सल्स रहते हैं, और भी बहुत सारे पार्सल रहते हैं। यहाँ पर हम लोग सेलर को फोर्स नहीं कर सकते कि मेरा जो प्रोडक्ट है, मेरा जो गुड्स है, वो सिर्फ मेरे को ही डिलीवर होना चाहिए, और वो सिर्फ डिलीवरी एजेंट के पोजीशन में सिर्फ उतना ही होना चाहिए। यहां पर कंडीशन क्या है कि यू विल रिसीव द प्रोडक्ट फ्रॉम द डिलीवरी एजेंट, इट कैन बी मिक्स्ड विथ अदर प्रोडक्ट्स, फ्रॉम दैट मिक्स्ड प्रोडक्ट्स बहुत सारे और अलग अलग 100 पार्सल्स हैं उस टेम्पो में। डिलीवरी एजेंट क्या करता है, वो 100 पार्सल्स में से मेरा पार्सल एक निकालता है और मेरे को हैंड ओवर कर देता है। तो दिस इज कॉल्ड एज मिक्स्ड गुड्स। जब मिक्स्ड गुड्स पार्सल किए जाते हैं, यस, मेरी आवाज आ रही है ना आप लोगों तक? Yes, sir. अच्छा, शायद बीच में किसी का अनम्यूट हुआ। ओके, तो मिक्स्ड गुड्स अगर किए जा रहे हैं तो इसमें क्या कंडीशन रहता है, टर्म्स क्या है अमेजोन के, कि यू विल रिसीव योर प्रोडक्ट इन गुड से गुड कंडीशन और पैकेज्ड कंडीशन। मैं क्या कर सकता हूं, मैं देख सकता हूं खोल के कि मेरा पेन ड्राइव कहीं से डैमेज तो नहीं हुआ है। मैंने 32 GB का ट्रांसेंड का कंपनी का मंगाया था, तो ट्रांसेंड का ही है, 32 GB है, कहीं से भी डैमेज नहीं हुआ। मतलब मुझे मेरा प्रोडक्ट मिल गया है। अब इसमें क्या था, डिलीवरी एजेंट को क्या इंश्योर करना था कि मेरा पार्सल मुझे ही मिलना चाहिए, दूसरा पार्सल मुझे अगर मिलेगा तो दैट इज नॉट मोड ऑफ डिलीवरी। मोड ऑफ डिलीवरी मिक्स्ड गुड्स के अंदर क्या रहता है कि जिसका पार्सल उसको मिलना चाहिए, और जिस कंडीशन में चाहिए उसी कंडीशन में मिलना चाहिए। अगर मुझे मेरा पेन ड्राइव खुला हुआ मिलता है तो मैं रिजेक्ट उसको कर सकता हूं, बिकॉज इट इज नॉट व्हाट आई वाज एक्सपेक्टिंग। कंपनी का पैकेज्ड, जो कंपनी की पैकेजिंग होती है वो ही अगर रहेगी तो ही मैं लूंगा, नहीं तो नहीं लूंगा। सो दैट इज कॉल्ड एज व्हेन द गुड्स आर मिक्स्ड विथ अदर गुड्स। नेक्स्ट वन, इंस्टॉलमेंट डिलीवरीज ऑफ गुड्स। इंस्टॉलमेंट डिलीवरी ऑफ गुड्स, इंस्टॉलमेंट डिलीवरी ऑफ गुड्स मतलब अगर आपने अलग अलग गुड्स खरीदे हैं, काफी सारी चीजें आपने, सपोज अभी घर में किसी की शादी है, और शादी में अभी अगर बेटी की शादी है तो नॉर्मली पेरेंट्स क्या करते हैं कि ये वार्डरोब भी देना है, एक अच्छा साइज का बेड भी देना है, उसको फ्रिज भी देना है, कलर टीवी भी देना है, फैन भी देना है, बहुत सारी चीजें एक शोरूम से अगर वो ले लेते हैं, अगर एक शोरूम से वो ले लेते हैं, शोरूम में अभी किंग साइज बेड जो सिलेक्ट किया है वो तैयार नहीं है, या फिर कबर्ड तैयार नहीं है, और वो क्या करता है, शोरूम वाला बोलता है कि ठीक है अभी 3 आइटम तैयार है, 3 आइटम तैयार नहीं है, तो 3 आइटम की डिलीवरी मैं अभी कर देता हूँ, 1 आइटम की डिलीवरी मैं कल करूंगा, और रिमेनिंग 2 आइटम की डिलीवरी मैं 2 दिन के बाद करूंगा। तो शादी से पहले आपको आपके पूरे 6 प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे। सो दैट इज कॉल्ड एज डिलीवरी इन इंस्टॉलमेंट्स इफ द बायर अग्रीज। बायर के पास हमेशा एक अधिकार रहता है, जब तक बायर एग्री नहीं करेगा सेलर कैन नॉट फोर्स। बायर को वो सारी चीजें बहुत पसंद आई, बायर को पता है कि ये जो शॉप ओनर है ये क्वालिटी गुड्स ही रखता है, जो भी वुड यूज हुई है वो बहुत अच्छे क्वालिटी की है, इसका प्राइस बहुत अच्छा है, रीजनेबल है, एंड इफ द बायर इज अलाउइंग, इफ ही इज गिविंग हिज कंसेंट दैट ओके आई एम रेडी फॉर इंस्टॉलमेंट्स ऑल्सो, कि आप अभी 3 गुड्स दे दीजिए, फिर 1 गुड्स दे दीजिए, और फिर 2 गुड्स दे दीजिए, आई एम रेडी फॉर दैट, देन दैट इज कॉल्ड एज इंस्टॉलमेंट ऑफ डिलीवरीज। नेक्स्ट वन, delivery to carrier or wharfinger. Wharfinger is nothing but the meaning of carrier transportation जो बोलते हैं हम लोग, delivery of goods to transportation। तो ट्रांसपोर्टेशन में भी
डिलीवरी ऑफ गुड्स अगर होता है तो ऑल डिपेंड्स अपॉन द टर्म्स एंड कंडीशंस। जैसे अगर हम लोग अमेजोन से अगर ये करते हैं तो अमेजोन का क्या कंडीशन है, क्या टर्म्स रहते हैं, या कोई भी ऑनलाइन से, कि जब तक डिलीवरी आपको एज इट इज नहीं मिल जाती तब तक रिस्क किसके पास है, अमेजोन के पास। मैंने पैसा पे कर दिया है, अमेजोन का जो टेम्पू डिलीवरी लेकर आ रहा था बीच में एक्सीडेंट हो गया, वो टेम्पू पलट गया और टेम्पू में जितना भी सामान था वो चोरी हो गया, वो सारा चोरी हो गया, पर मैंने तो पहले ही पैसा पे कर दिया। अब अमेजोन का क्या है, उनका क्या कंडीशन रहता है, उनके क्या टर्म्स हैं, उनके टर्म्स एकदम फिक्स हैं कि जब आपके पास डिलीवरी मिलेगी, जब आप फिजिकली वो रिसीव कर लेंगे, तब हमारा रिस्क खत्म हो जाता है, तब हमारा रिस्क एकदम मतलब फिर आपके पास रिस्क हैंडओवर हो गया, हमारा रिस्क वहां तक है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी वहां तक है। तो यहाँ पर जब मेरे को प्रोडक्ट मिला ही नहीं है, अगर मैं अमेजोन में कंप्लेंट करता हूँ, अगर वो चेक करते हैं कि यस देयर वाज एन एक्सीडेंट टू द टेम्पो व्हिच वाज कैरिंग माय पैकेज and all the packages because of that accident were stolen by someone, then it is the responsibility of the Amazon to see to it that I get the same product next day or next to next day. Next one, buyer not bound to return rejected goods. Buyer not bound to return rejected goods. What does it mean? Buyer is not bound to return rejected goods. इसका क्या मतलब है? बायर की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि वो रिजेक्टेड गुड्स को रिटर्न करे, रिजेक्टेड गुड्स को रिटर्न करे। क्या मतलब है इसका? आई होप दैट माय वॉइस इज क्लियर टू ऑल। Yes, sir. अच्छा, no one is asking today anything na, that is why I am thinking that whether my voice is audible or not now. ठीक है, what is the meaning of this? Buyer is not bound to return rejected goods. If some rejected goods are received by the buyer, he is not bound to return those goods. Return those goods. Sir, I think if the goods are delivered damaged or हाँ some rejected lot, sometime it हाँ happens. Seller हाँ doesn't know or by mistakenly has found. So that products even he doesn't return it. He is हाँ, liable to get a new product. compensation for that, new Yes. product or compensation for that. Yes. ऐसा ही है? Yeah, that is what my understanding as per नहीं, this. yes, yes, in some cases, yes, in some case it is not applicable to each and every case. It is applicable to some of the cases if it is proven that the delivery was intentionally done of a rejected item. जो डिलीवरी सेलर ने दी है वो रिजेक्टेड आइटम की दी है। रिजेक्टेड आइटम मतलब कि कंपनी ने ही जो क्वालिटी टेस्ट में वो प्रोडक्ट पास नहीं हुआ, कंपनी ने उस प्रोडक्ट को रिजेक्ट कर दिया था और उसको रिजेक्टेड माल में डाल दिया था। अब सेलर क्या करता है, रिजेक्टेड माल उसको बहुत कम रेट में मिलता है, किसी के साथ वो मिलता है, कंपनी के ही किसी व्यक्ति के साथ, और वो जो रिजेक्टेड माल भंगार में जाने वाला था वो सारा वो खरीद लेता है, वो सारा वो खरीद लेता है। अब वो इलेक्ट्रॉनिक गुड्स है, उसमें ये सीलिंग फैंस है, टेबल फैंस है, उसमें आप ये टीवीज हैं और बहुत सारे अदर इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स हैं। बायर जब एक सीलिंग फैन खरीदने के लिए जाता है तब उसे वो ओरिएंट कंपनी का एकदम जो अच्छा पीस है वो दिखाता है, उसका वो दुकान में उसकी लगा हुआ है, वो चला के दिखाता है, बिल्कुल आवाज नहीं है, हवा अच्छी आ रही है, वो पीस भी बहुत सुंदर है, सब कुछ अच्छा है, और उसको वो थोड़ा सा डिस्काउंटेड रेट पे भी बताता है
कि जो मार्केट में उसका एमआरपी 2000 रुपीज है, ये उसे बताता है कि आई एम रेडी टू गिव यू फॉर 1800 रुपीज, 1800 रुपीज में भी मैं आपको ये दे सकता हूँ। अब वो बोलता है कि आप घर चले जाइए, मैं आपको डिलीवरी दे दूंगा और डिलीवरी का भी चार्ज नहीं लूंगा। अब डिलीवरी किसकी करता है? वो जो शोरूम के अंदर फैन है ओरिजिनल, जो ट्राइड टेस्टेड एंड क्वालिटी अप्रूव्ड है ओरिएंट कंपनी का, वो उसको डिलीवर नहीं करता। जो जिसकी मोटर में खराबी आ गई थी, जिसमें और भी बहुत सारी खराबियां थी, जो कंपनी को ये लगा कि नहीं अभी हम लोग इसको अच्छे से बना नहीं सकते, तो बेटर है कि इसको हम लोग स्क्रैप में डाल देते हैं। तो वो मशीन जो स्क्रैप में गई थी, वो जो फैन, वो स्क्रैप वाला फैन जो सेलर ने खरीद लिया है, अगर वो बायर को बेचा जाता है तो बायर कैन रिजेक्ट द डिलीवरी of reject the delivery as well as if he has received the delivery and जब उसे पता चलता है कि अरे ये तो एकदम ही स्क्रैप का माल दिया है मुझे, तो वो स्क्रैप का माल रिटर्न करने की भी उसे जरूरत नहीं है। वहां पर वो सेलर को बोल सकता है कि आपने मेरे साथ चीटिंग की है, अब आपको मुझे नया फैन देना पड़ेगा। अगर सेलर यहाँ पर मना करता है, अगर सेलर यहाँ पर मना करता है, तो बायर can very easily prove in the court of law that there was a fraud committed by seller in the contract of sale of goods, और वो एविडेंस के तौर पे अपने पास वो रख सकता है। और कोर्ट में वो अगर वो प्रोड्यूस कर देता है तो सेलर को न सिर्फ उसे वो फैन देना पड़ेगा, पर कोर्ट में बायर ने जितना भी खर्चा किया है, जैसे कोर्ट में केस फाइल करने के लिए खर्चा हो, या किसी वकील को हायर करने का खर्चा हो, या फिर उसका जो दूसरा खर्चा है, जैसे 3 महीने तक अगर केस चलता है तो 3 महीने तक उसका ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा, उसका और दूसरा खर्चा, all can be included and it is to be charged from the seller. So that is the condition. Now the last one, liability of buyer for neglecting or refusing the delivery of goods. Last, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्या लायबिलिटी है बायर की फॉर निग्लेक्टिंग और रिफ्यूजिंग द डिलीवरी ऑफ गुड्स? यहां पर सेलर रिजेक्ट कर सकता है क्या? सपोज मैंने वॉशिंग मशीन खरीदी एज बायर, और जब वो घर पर आता है डिलीवरी, तो फिर मेरे घर पर ताला लगा हुआ है। अब डिलीवरी वाला ताला देखता है, आसपास पूछता है, कोई मेरे को पहचानता नहीं है, तो डिलीवरी वापस चली जाती। तो जब मैं अगली बार सेलर के पास जाता हूँ, तो सेलर मुझे बोलता है कि नहीं, मैंने आपको बताया था आज शाम को मैं आपको डिलीवर कर दूंगा, अब आपका प्रॉब्लम है, आप घर पे नहीं थे, अब ये वॉशिंग मशीन मैं आपको डिलीवरी नहीं करूंगा। तो यहाँ पर सेलर क्या कर सकता है? एक्स्ट्रा ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस ले सकता है, पर आउटराइटली ये नहीं बोल सकता कि अब कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल खत्म हो गया, अब आप मेरी लायबिलिटी ही नहीं है कि मैं आपको वॉशिंग मशीन दूं, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म हो गई। तो ये यहाँ पर वो नहीं बोल सकता। ओनली थिंग ही कैन आस्क फॉर extra transportation charges. So that was regarding rules of delivery of goods. Now tomorrow, where we will be talking about two very important concepts in contract of sale of goods. One concept is called as condition in the contract of sale of goods, and the other part of the contract of sale of goods is called as warranty. So what is the difference between condition and what is warranty in contract of sale of goods, that we will be discussing tomorrow. यहाँ पर एक चीज ध्यान में रखिए कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स में कुछ ऐसे वर्ड्स यूज किए गए हैं जिनका जो जनरल मीनिंग है, जो अभी तक हमारे को पता है, वो अलग है, और यहां पर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स में अलग है। जैसे प्रॉपर्टी,
जो हम सब समझते हैं, आप सब समझते हैं अभी तक कि प्रॉपर्टी मतलब क्या, कि अगर फ्लैट बेचा जाए तो प्रॉपर्टी, प्लॉट बेचा जाए तो प्रॉपर्टी, घर बेचा जाए तो इट इज सेल ऑफ प्रॉपर्टी, इट इज ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी। पर यहां पर क्या है, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी वो नहीं। यहां पर ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी मतलब जब आप एज बायर पैसा दे देते हैं, आपको जो प्रोडक्ट खरीदना है और आप वो प्रोडक्ट खरीद लेते हैं, तो इमीडिएटली देयर इज ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी। यहाँ पर ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी का मीनिंग अलग है। अब जब कल हम लोग डिस्कस करेंगे तो प्लीज आप लोग भी थोड़ा सा पढ़ के आइए कि वारंटी कैसे डिफरेंट है। अभी तक वारंटी मतलब जो हम लोग पढ़ा है, जो अभी तक हम लोगों को पता है कि गारंटी क्या रहता है और वारंटी क्या रहता है। गारंटी मतलब क्या है कि कंप्लीट रिप्लेसमेंट विथ द न्यू प्रोडक्ट। वारंटी इज instead of replacing, if small defect is there, it is repaired। ठीक है, तो वो वारंटी का मतलब है, जनरल मतलब है जो अभी तक हम सबको पता है। अब यहाँ पर कल हम लोग जब डिस्कस करेंगे तो मतलब थोड़ा सा डिफरेंट है। तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स में ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एंड वारंटी इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम द जनरल टर्म, जनरल यूसेज टर्म। ठीक है, तो थोड़ा सा पढ़ के आइए, पढ़ के आएंगे तो शायद ज्यादा इंटरेस्टिंग रहेगा। आज कोई क्वेरी नहीं थी तो प्लीज कल तो ज्यादा से ज्यादा क्वेरीज लेकर आइए, सो वी कैन डिस्कस ऑन मोर एग्जांपल्स आल्सो। ठीक है, चलो, sir. you can take a screenshot of this Yes, and sir. we will immediately wind up the session. Tomorrow at 8:30 when we will be starting with what is the meaning of word condition in contract of sale of goods and what is the meaning of word warranty, particularly only in contract of sale of goods. That we will discuss tomorrow. Thank you for joining for the session. Tomorrow please come prepared so that we can discuss more. Okay, thank you everyone. Thank you, sir. Yes, sir. Thank you, sir.